In last four lectures, we discussed about two methods of correlation, scatter diagram method and Carl Pearson's product moment method. In lecture 5th, we will discuss on third method, Spearman's rank correlation. Spearman's rank correlation method. When we deal with qualitative variable or attribute like beauty, honesty, skill, music, dance, etc. In such situations, these characteristics means qualitative variable or attributes can be ranked serially according to their proficiency in such characteristics. The correlation coefficient computed using such ranks of two characteristics means qualitative variables as suggested by Charles Spearman is known as Spearman's rank correlation coefficient. Even if the data consists of quantitative variables like height, weight, the rank correlation coefficient is obtained by assigning the ranks to the numerical observations according to their magnitudes. When there is more dispersion among the values of the observations of two variables, rank correlation coefficient is preferred over Carl Pearson's correlation coefficient because rank correlation coefficient is more stable about dispersion of the observations as compared to Carl Pearson's correlation coefficient. देखो यहाँ पर जब भी क्वालिटेटिव डेटा मीन्स क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स वाले डेटा होता है लाइक ब्यूटी, ऑनेस्टी, स्किल, म्यूजिक, डांस, उसको हम क्या करें न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं ले सकते। तो ऐसे टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या कर रहे हैं रैंक दे रहे हैं, सीरियली रैंक देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफिशिएंसी इन सच कैरेक्टरिस्टिक्स। कई बार ऐसा होता है कि भी क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं लाइक हाइट, वेट, हम कब हाइट किसकी ज़्यादा है तो हम उसको रैंक दें, मार्क्स हैं आपका जो एग्जाम में जो आपका जो रिजल्ट बनता है वो रैंक के हिसाब से बनता है। तो हम क्या कर रहे हैं ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले को हम फर्स्ट रैंक देते हैं, उससे कम वाले को सेकंड, सो ऑन हम क्या करते हैं ऐसे रैंक दे सकते हैं। और तीसरी सर्कमटेंसेस ऐसी है कि जब more dispersion among the values of observations of two variables, rank correlation coefficients preferred। कार्ल पियर्सन correlation coefficient से ये rank correlation coefficient ज्यादातर रिफर करता है। ठीक है, तो स्पीयरमैन्स रैंक correlation method। Now, there are n pairs of observations are numerical measurements like x1, y1, x2, y2, x3, yt up to xn, yn. The highest observation is given the rank 1 means from each variable। अलग अलग जो वेरिएबल है उसमें से जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है उसको हम रैंक 1 देते हैं। द सेकंड हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन इज गिवन रैंक 2 and so on for each variable, and the rank correlation coefficient can be obtained from these ranks। जो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना ये रैंक के हिसाब से हम फाइंड कर सकते हैं। इसकी फॉर्मूला क्या है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। नोट दैट Spearman's correlation coefficient is nothing but Carl Pearson's correlation coefficient between the ranks of two attributes values। जो कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो क्या फाइंड करते हैं, उसमें हम क्या कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे फाइंड करते थे, दो जो हमारे जो वेरिएबल्स की वैल्यू इस बीच में फाइंड करते हैं। लेकिन जो स्पीयरमैन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या करते हैं, जो रैंक्स हैं जो रैंक्स है उसके बीच का हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं। Therefore it can be interpreted in the same way
एज वी इंटरप्रेट द कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट। जो अगर इंटरप्रिटेशन करना है तो जो हमने कार्ल पियर्सन्स में हमने इंटरप्रिटेशन किया है वैसे ही हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। जनरली द वैल्यूज ऑफ स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट are not equal, but when the values of two variables are some arrangement of first and natural numbers, correlation coefficient obtained by Karl Pearson's method and Spearman's method are equal. कब इक्वल होता है? कार्ल पियर्सन मेथड और स्पीयरमैन मेथड से कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू कब इक्वल होती है? व्हेन वी टेक द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स of some arrangement of first and natural number, जो first and natural 1 2 3 4 1 2 3 4 5 बराबर है, तब क्या हो सकता है कि कार्ल पियर्सन मेथड से जब हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे या हम स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड से हम जब फाइंड करेंगे तब दोनों का आंसर हमें क्या मिलने वाला है? इक्वल मिलने वाला है। Formulas to find the rank correlation coefficient. When the observations of variable x and y are not repeated, any single observation is not repeated two or more than two times. At that time, we can find rank correlation coefficient by using this formula. R is equal to 1 minus 6 sigma d square upon n into n square minus 1. Now what is d? Where d is equal to Rx minus Ry. What is Rx? Rx is the rank of variable x. And what is Ry? Ry is rank of variable y. N is number of pairs of observations, जो हमने कार्ल पियर्सन मेथड में हमने जो n की वैल्यू लेते थे वैसे ही यहाँ पर n की वैल्यू आपको लेनी है। सेकेंड फॉर्मूला, वन एनी वन और मोर देन वन ऑब्जर्वेशन आर रिपीटेड, कोई एक ऑब्जर्वेशन या एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशन एक या ज्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा है तब हमें ये फॉर्मूला आपको यूज करनी है। R is equal to 1 minus 6 into bracket sigma d square plus CF upon n into n square minus 1. Now, what is CF? Well, CF is a correction factor. And how can you find CF? CF is the summation of n cube minus m upon 12. यहाँ पर CF क्या है? जो m क्यूब माइनस m अपॉन 12 की वैल्यूज हैं उसका टोटल है। बट व्हाट इज m? m इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड। सपोज कोई ऑब्जर्वेशन 2 टाइम्स रिपीटेड है तो m की वैल्यू क्या होगी? 2 हो जाएगी। अगर 3 टाइम्स रिपीट हो रही है वैल्यू तो हमें m की वैल्यू क्या लिखनी है? 3 लिखनी है। देखो ये जो 2017 से जो नई बुक आई है इसमें ये फॉर्मूला ऐड हुई है। पहले जो पुरानी टेक्स्ट बुक थी उसमें एक ही फॉर्मूला थे, R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। देखो यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसमें आपको एक ही टेबल बनाना है, लेकिन सेकंड फॉर्मूला है उसमें 2 टेबल बनाना है। बाद में आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे, वो हम सम में हम डिस्कस करेंगे। Let's start with sums. Example number 7. The following information is obtained by a survey conducted by town planning committee of a state city. There are 5 cities A, B, C, D, E. Population in lakhs 57, 45, 14, 18 and 8. Rate of growth per thousand 13, 20, 10, 15. Find the rank correlation coefficient between the population of the cities and the rate of growth of the population.
एक्सरसाइज 2.3 एग्जाम्पल नंबर 3 मार्च 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो पहले तो हम n इजीली फाइंड कर सकते हैं। देयर आर 5 पेयर्स, सो n इज इक्वल टू 5, राइट। नाउ हियर are given population and rate of population. So first we have to assign the rank according to the population. Give rank to population and rate of population. In population, city A has highest population. City A highest population, so we will give rank 1 to it. Then city B has second highest population, so we will give rank 2 to it. Then in population, city D has third highest population, so we will give rank 3 to it, and so on. So similarly we can give the ranks to rate of growth. For city B has rate of growth is highest, so give first rank. Next, city D has second highest rate of growth, give rank 2 to it, and so on. तो ऐसे हम रैंक्स दे सकते हैं। हाईएस्ट वैल्यू है तो उसको हम फर्स्ट रैंक दे, सेकंड हाईएस्ट को सेकंड, थर्ड हाईएस्ट को थर्ड, एंड सो ऑन। दोनों वेरिएबल के लिए हम रैंक दे सकते हैं। नाउ हाउ कैन यू फाइंड सिग्मा डी स्क्वायर? लेट्स सी। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसे कॉलम बनाएंगे। सी टी ए बी सी डी ई, पॉपुलेशन x ले लिया, आर एक्स इसके साथ रख दिया, मीन्स रैंक ऑफ वेरिएबल x। फिर बाद में हमने क्या किया, रेट ऑफ ग्रोथ y ले लिया, वेरिएबल y डिनोट कर दिया, रैंक ऑफ वेरिएबल y आर वाई कर दिया। फिर हम कौन से कॉलम बना दे, d इज इक्वल टू आर एक्स माइनस आर वाई देन डी स्क्वायर, क्योंकि हमारी फॉर्मूला में सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो टोटल मिल रहा है वो हमें टोटल, ये जो यहाँ पर आपका जो टोटल आएगा वो वैल्यू हम पुट करके कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसकी वैल्यूज हमें दे रखी 57, 45, 14, 18, 8। अब हमें रैंक देना है, तो रैंक देंगे तब जो हाईएस्ट वैल्यू है सिटी, कौन से सिटी को, तो ए की वैल्यू, सिटी ए की वैल्यू हाईएस्ट है, मीन पॉपुलेशन हाईएस्ट है, तो उसको हम रैंक कौन सा देंगे, 1 देंगे। नेक्स्ट इज 45, तो उसको हम रैंक कौन सा देंगे, 2 देंगे। नेक्स्ट वन 18, तो उसको हम रैंक क्या से देंगे, थर्ड रैंक देंगे। नेक्स्ट इज 14, उसको हम रैंक देंगे 4, और जो लास्ट हैं उसको हम कौन से देंगे, लोएस्ट वैल्यू हैं उसको हम 5th रैंक देंगे। अब रेट ऑफ ग्रोथ है, तो रेट ऑफ ग्रोथ के लिए हमें जो सारी वैल्यूज हैं 13, 20, 10, 15, 5, हाईएस्ट वैल्यूज 20, तो हम उसको क्या देंगे, रैंक 1। सेकेंड हाईएस्ट इज 15, तो इसको हम कौन सा रैंक देंगे, 2 रैंक देंगे। नेक्स्ट इज 13, तो उसको हम रैंक देंगे 3। नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू इज 10, इसको हम रैंक देंगे 4, और जो लास्ट मीन्स लोएस्ट वैल्यू है उसको हम कौन सा रैंक देंगे, 5th रैंक देंगे। अब हमें फाइंड क्या करना है, डी की वैल्यू मीन्स आर एक्स माइनस आर वाई। सो आर एक्स की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर 1 ले रहे हैं, 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू -2। ऐसे 2 माइनस 1, 4 माइनस 4, 3 माइनस 2, 5 माइनस 5, तो ऐसे वैल्यू हमें मिलेगी 1 0 1 0। डी स्क्वायर इट मीन्स -2 का हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो सिग्मा डी की वैल्यू हमेशा 0 ही आनी चाहिए। रिमेंबर, सिग्मा डी इज इक्वल टू 0, इट बिकम्स ऑलवेज 0। ये हमने फर्स्ट फाइंड कर देंगे, -2 का स्क्वायर हम करेंगे तो 4 मिलेंगे, बाकी के सारे वैल्यूज हम स्क्वायर करके फाइंड कर सकते हैं। तो हमें टोटल क्या मिल रहा है, सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 मिल रहा है। ठीक है, अब हम अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला, हमारी कौन सी फॉर्मूला, ये फर्स्ट फॉर्मूला,
R is equal to 1 minus 6 sigma d square upon n into n square minus 1. By putting value in this formula, 1 minus 6 into 6 means 36, 5 upon 25 minus 1, so which is equal to 1 minus 36 upon 5 into 24, right? So 36 upon 120 हमें वैल्यू मिलेगी, तो 1 minus 0.3, so R is equal to 0.7. तो ऐसे इजीली हम रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं. आपको याद रखना है जो रैंक मीन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट आप आइदर बाय यूजिंग कार्ल पियर्सन्स मेथड या स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन को जो मेथड है, दोनों का आंसर उसकी रेंज क्या है, -1 टू +1. इट मीन्स -1 +1 भी हो सकता है और दोनों के बीच में ही वैल्यू आनी चाहिए. नहीं आ रही है तो समझ लो आपने कहीं भी गलती की हुई है. ठीक है, अब हम होमवर्क दे देते हैं. डू इट योरसेल्फ. इलस्ट्रेशन नंबर 20 मार्च 2018 में पूछा गया है. एक्सरसाइज 2.3 एग्जाम्पल नंबर 4, एक्सरसाइज 2 सेक्शन ई एग्जाम्पल नंबर 4th and 5th. See another example, example number 8. To know the relation between understanding of students in the subject of economics and the dancing skill, a sample of 8 students is taken and a test is conducted for them. The marks obtained are given below. Find the rank correlation coefficient between the marks obtained in two subjects. Illustration number 22 जुलाई 18 में ये पूछा गया सम है. मार्क्स इन इकोनॉमिक्स 60, 30, 10, 20, 30, 50, 30, 40. मार्क्स इन डांसिंग स्किल 80, 20, 60, 40, 12, 28, 10 एंड 15. यहाँ पर हम देख सकते हैं, पहले हमें चेक करना है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर नहीं हो रहा है तो हमने जो लास्ट सम किया है वैसा ही फाइंड करना है. लेकिन यहाँ पर हम जब मार्क्स इन इकोनॉमिक्स देखते हैं तो 30 मार्क्स 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है. देखो यहाँ पर 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है. और कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है कि नहीं तो हम चेक करते हैं. वेरिएबल y में क्या हो रहा है, ये 20 है, वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है. तो ये सम हमें कैसे करना है, लेट अस सी. If we assign ranks according to the math marks in economics, then the highest marks is 60, so its rank is 1, rank 2 for the marks 50, and rank 3 for the marks 40. Now the next is marks 30, which is repeated 3 times, so the average rank of the corresponding ranks is rank 4, rank 5 and rank 6. So we should take the average. How can you take the average? 4 plus 5 plus 6 divided by 3, because 3 टाइम्स 30 रिपीट हो रहा है, उसका रैंक अलॉट करते हैं तब कौन सा आ रहा है, 4th, 5th एंड 6th. तो तीनों का हम एवरेज निकालेंगे तो हमें क्या मिलने वाली वैल्यू, 5 मिले. सो 5 विल बी द रैंक फॉर द मार्क्स 30. जहां जहां 30 मार्क्स है वहां पर हम क्या रैंक कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट कौन सा है, तो 20 है, तो उसको हम कौन सा रैंक देंगे, 4, 5, 6 तो अलॉट कर दिया, तो नेक्स्ट रैंक कौन सा आएगा, इट विल बी 7. एंड finally for the lowest mark 10, its rank will be 8. Similarly we assign ranks according to the marks in the dancing skill. हम देखते हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट रैंक किसको देंगे, तो फर्स्ट रैंक देंगे तब हम क्या मिलेंगे, इसको हम यहाँ पर 80 है तो उसको हम क्या देंगे, रैंक 1 देंगे, इसको हम रैंक 1 देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट सेकंड हाईएस्ट इज 60, तो उसको हम कौन सा रैंक देंगे, 2 रैंक देंगे. नेक्स्ट हाईएस्ट इज 40, तो 40 को हम कौन सा रैंक देने वाला है,
थर्ड रैंक देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आ रही है 28, तो इसको हम कौन सा रैंक देंगे, फोर्थ रैंक देंगे। लेकिन ये जो 20 और ये 20 है, दो रिपीट हो रही है, तो अब रैंक किसके कौन से एवरेज लेना, रैंक 5 एंड रैंक 6, रैंक 5 एंड 6, तो उसकी हमें क्या करना है, एवरेज लेनी है। जो रैंक 5 प्लस 6 डिवाइड बाय 2, बिकॉज 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है ना। मार्क्स इन डांसिंग में जो 20 मार्क्स हैं वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो उसकी वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है 5.5। तो 20 मार्क्स है जो डांसिंग से में, उसके सामने हम रैंक कौन सा लिखेंगे 5.5। नेक्स्ट जो आ रहा है, नेक्स्ट कौन सी वैल्यू आ रही है, तो नेक्स्ट है 15, तो 15 है, तो 15 को कौन सा रैंक देंगे हम, ये 5 6 तो अलॉट हो गया, तो हम कौन सा रैंक देंगे उसको, सेवन्थ रैंक देंगे। और जो 12 है उसको हम कौन सा रैंक देंगे, 8 रैंक देंगे। तो ऐसे हमें रैंक देना है। तो कैसे हमें टेबल बना, जो पहले वाला जो टेबल था, जो लास्ट एग्जाम्पल नंबर 7 था, उसी तरह ही हमें क्या करना है, हमें रैंक देना है। फिर बाद में डी और डी स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सी, मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, मार्क्स इन डांसिंग स्किल लिख दिया, आर एक्स, आर वाई, डी एंड डी स्क्वायर। जब रैंक देंगे तब 1 फिर 5 30 को हम 5 रैंक दिया, जो हमने आगे हमने एक्सप्लेन कर दिया है। वैसे ही जो वेरिएबल y है उसके सारी वैल्यूज को हम रैंक कैसे देंगे, तो 1 की 20 वाला 2 टाइम्स रिपीट हो, उसको हमने क्या आंसर रैंक दिया था 5.5 5.5। 60 के लिए 2, 40 के लिए 3, 12 के लिए 8, 28 के लिए 4 और 15 के लिए 7 रैंक दिया था। सिंपल, d इज इक्वल टू वॉट, आर एक्स माइनस आर वाई। वैसे हम फाइंड कर सकते हैं 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 5 माइनस 5.5 इज इक्वल टू माइनस 0.5। ये जो कॉलम है उसका टोटल कितना आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए। फिर बाद में हम डी स्क्वायर फाइंड कर देंगे, तो जो डी स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज बिकम पॉजिटिव बिकॉज वी स्क्वायर ऑफ द वैल्यूज ऑफ डी। तो स्क्वायर करते तब हमें पता है कि भी सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएगी। टोटल सिग्मा डी स्क्वायर कितना आ रहा है 81.5 वैल्यू आ रही है। अब क्या करना है, ये सम में हमें एक और टेबल बनाना है। तो कैसे टेबल बनाना है, तो देखो, अब जो करेक्शन फैक्टर हैं तो वो कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमें दूसरा टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। सो द कैलकुलेशन ऑफ करेक्शन फैक्टर सी एफ इज एज फॉलोज। यहाँ पर हम 3 कॉलम्स बनाएंगे, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, number of times the observation is repeated, and last column is m cube minus m upon 12। repeated observation कौन सा था, को पता है कौन सा था 30 एंड 20, लेकिन 30 कितने टाइम्स ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा था, ये ऑब्जर्वेशन 3 टाइम्स रिपीट हो रहा था, 20 2 टाइम्स, हम 3 एंड 2 ऐसे लिख देते हैं। अब हमारी जो ये वैल्यू 3 एंड 2 है विच इज नोन एज m। सो 3 हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं m की वैल्यू, तो 3 वैल्यू पुट करते हैं, तब 3 क्यूब माइनस मीन्स 27, 27 माइनस 3 24, 24 अपॉन 12 विच इज इक्वल टू 4, right, or which is equal to 2, which is equal to 2, 3 cube minus 3 upon 12 which is equal to 2. Now by putting value of m is equal to 2, 2 cube minus 2 upon 12 means 8 minus 2 6, 6 upon 12 which is equal to 0.5. So CF is equal to 2.5. Now by applying this formula, R is equal to 1 minus 6 into bracket sigma d square plus cf upon n into n square minus 1, we can find correlation coefficient। वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर, तो 6 इंटू 81.5 प्लस 2.5 अपॉन 8 इंटू 8 स्क्वायर माइनस 1। सिंप्लीफाई किया तो 1 माइनस 6 इंटू 84
अपॉन 504, 504 अपॉन 504, तो क्या वैल्यू होगी? 504 अपॉन 504 की वैल्यू क्या मिलने वाली है? 1 मिलने वाली है। सो 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो आर की वैल्यू 0 आ रही है, तो हम इंटरप्रेट क्या करेंगे? इंटरप्रेट ऐसे करेंगे, इट कैन बी सेड दैट देयर इज अ लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन बिटवीन द रैंक्स ऑफ द मार्क्स इन बोथ द सब्जेक्ट। जैसे हमने कार्ल पियर्सन में किया, ऐसे ही यहाँ पर इंटरप्रेट किया हुआ है कि r इज इक्वल टू 0 आए तो एब्सेंस ऑफ लीनियर कोरिलेशन बिटवीन, यहाँ पर क्या लिखेंगे? रैंक्स ऑफ द मार्क्स इन द बोथ द सब्जेक्ट्स। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे हम स्पीयरमैन के रैंक कोरिलेशन मेथड से हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। नाउ होमवर्क, do it yourself. Illustration number 21 and 23, exercise 2.3, example number 5 and 6, exercise second, section E, example number 6, and in section F, example number 5, 6 and 7. Do all these sums yourself. अब तक आपने स्पीयरमैन्स के दो टाइप्स के सम्स हमने देखे, आपने कैसे डिफरेंट फार्मूला कैसे यूज़ करना है इसके सारे सम्स देखे। थैंक्स फॉर वाचिंग सिंपली स्टैटिस्टिक्स चैनल। सिंपली स्टैटिस्टिक्स चैनल को लाइक करना मत भूलिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक्स टू यूट्यूब चैनल। बाय, हैव a nice day.